आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। सुखासन में या वज्रासन में बैठ जाइए। हैंड्स इन ध्यान मुद्रा और इन नमस्कार मुद्रा एंड कीप योर आइज क्लोज्ड। विजुअलाइज योर एंटायर सेल्फ फ्रॉम द टोज टू द हेड। रिलैक्स योर सेल्फ। श्वास प्रश्वास को देखना है और धीरे धीरे अपने आप ही सहज होने देना है। Let the breathing settle down. Do away with all the work which you were doing and focus on yourself for this 1 hour. See that you are gathering yourself from all the work, the tasks which are always with us. But give the priority to yourself. I am the first person. I need to take care of my health. I need to calm down and settle down my mind of all the thoughts. So मन शांत हो रहा है। प्रार्थना से मन और तैयार हो जाएगा। तो 3 ओंकार करते हैं। गहरी सांस ले। स्पंदनों को महसूस कीजिए। स्लोली जेंटली ओपन योर आईज। धीरे से आंखों को खोले और अपने पैरों को स्ट्रेच कर दीजिए। लेट्स बिगिन विद सिंपल वार्मिंग अप। पैरों के टोज को विगल करें। जस्ट विगल योर टोज 6 to 7 times and more than that. Keep the spine straight. Inhalation, exhalation normal. फिर एंकल स्ट्रेच कीजिए। गिव अ नाइस एंकल स्ट्रेच। फील द पुल ऑन योर लेग मसल्स। अब एंकल टोज को बाहर की ओर स्ट्रेच करते हुए मेंटेन करें। फील द लॉकिंग ऑफ योर नीज। फील द पुल इन द काफ मसल्स। मेंटेन। अब पैरों की उंगलियों को अंदर की ओर लेना है अपनी ओर और मेंटेन करना है स्ट्रेच को। अगेन पुश योर नीज डाउनवर्ड्स। Push your calf muscles down, maintain, relax, just do the rotation and then do reverse. अब राइट लेग को ऊपर उठाए, मेंटेन करें, draw your shoulder blades back, left leg up, maintain. अब राइट लेग को फोल्ड करके नीचे से पकड़ना है और अप एंड डाउन नी, फॉरवर्ड एंड बैक। देन सेम इसी को ऐसे घुमाए घुटने को एंड देन डू रिवर्स। चेंज से लेफ्ट लेग
then do reverse, one direction rotation, reverse, okay. राइट लेग को बाहर लीजिए इस तरह से, hands interlock and stretch up and bend down to the right side 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. अब वैसे ही लेफ्ट साइड बेंडिंग करें. 1, 2, 3, 4 and 5. हैंड्स को रिलीज करना है. दोनों पैरों को सामने रखिए और तितली क्रिया कर लीजिए, बटरफ्लाई क्रिया. सो स्लोली फ्लैपिंग द नीज 25 times, back straight. Press down the knees and maintain. Slowly turn back and turn the head also back. Turn the right hand to the right side back. Left side turn back. Join the knees. Press tightly. Hug yourself. Relax the legs. Sit in Sukhasana. Okay. Slide. And now right side में slide किया है. ऊपर वाला हाथ लेके right side bending. Maintain. Turn left side. Slide. And maintain the stretch. Come back. Let's do the rotation 3 times. And then do reverse. And relax. Okay. Now shoulder blades पे आप अपने fingers को रखेंगे and join and open. Stretch nicely. Okay. Up down. Right one. Okay. Now right hand is up and left hand is down. And turn and look at the right hand up. Feel the stretch. Go back. Left hand is up. Elbow up. Now do the rotation. And do reverse. Stretch. Okay. Now hand stretched forward. Slowly turn to the right side back. Now your left palm is touching the left shoulder, right hand back. Just maintain. Slowly come to the center. Right palm touching the left shoulder, completely back. Slowly center. Relax. Okay. Wriggle your shoulders. Okay. Now turn the head right and left. Look behind the right shoulder. Look behind the left shoulder. 3 बार करें. Center. Back. Forward. Last. Okay. Now gently stand in your place. धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाए. Stand in your place. Okay. Some stretches in standing also we will do. Interlock the fingers. Hands up. Raise your heels up and hands up. 1. पैरों में अंतर रखो. अगर बैलेंस नहीं है तो, बैलेंस आता है तो पैरों को जोड़ के रखो. 3, 4 and 5. पैरों में अंतर बढ़ाएं. हैंड स्ट्रेच.
center, bend down to the left side, maintain करें. Come back to the center, backward arching, maintain. Breathe normal and slowly forward bend, maintain. धीरे से ऊपर उठे and relax yourself. Okay? पैरों में और अंतर को बढ़ाएंगे. Hands are stretched and just bend down right side and left side. 5 बार. Last 5. Okay. Now keeping the same distance, right foot pointing out, bend at the right knee, push the elbow on the knee and bend down. Lateral stretch, maintain, head down. Come back, right foot in. Left foot point out, bend and stretch. Maintain. Good. Okay. Now right foot is there, forward, knee bend, ऊपर देखिए. Maintain करें. Same way, left foot, maintain. Okay. Now let's go for the forward bend. Right पैर आगे ही है. Slowly down. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Change. 1, 2, 3, 4, 5 and relax. Okay. Now do the hip rotation. And do reverse. Okay, good. Now do the back lunges. इस तरह से मैट के आगे आ जाइए. हाथों को ऐसे रख सकते हैं. ओके. बैक लंजेस में पीछे जाना है. स्टार्ट. 1, 2. Take the leg more and more back. 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. Relax. Now we will do sumo squats. पैरों में अंदर रखेंगे. हाथों को ऐसे इंटरलॉक. ओके. एंड पुश योर हिप्स आउट एंड सिट. 1, 2. देखो घुटने पैर के फुट के आगे नहीं आएंगे. पुश. 3, 4 and 5. Okay. Now both the hands are up and you are going to touch the opposite toes. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So now the breathing is fast. So let us do the breathing practice. मैट के आगे खड़े रहेंगे. पैरों में अंदर, हाथ आगे. Breathe in, breathe out. Again breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Okay. Now next breathing practice. पैरों को जोड़ो. ओके. एंड एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग. हाथों को उठाएंगे, एरियो को उठाएंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. सांस ले, सांस बाहर, सांस ले, बाहर, सांस ले, बाहर. लास्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ओके. सो लेट अस बिगिन विद slow marching. Swing your hands, relax your hands and your legs. जस्ट थोड़ा सा स्पॉट मैचिंग करेंगे. एंड यू
कैन स्टार्ट विद जॉगिंग. जिनको नहीं करना है वो स्पॉट मार्चिंग करते रहे. अदर्स कैन गो फॉर जॉगिंग. कंटिन्यू विथ योर जॉगिंग. ब्रीथ आउट फ्रॉम द माउथ. मूव योर हैंड्स. Hands up. Now hands push up. Continue with the jogging. Sides. Forward. Crossover. Very good. हाथों को ऐसे रखो. Turn the palms up and down. Shake your hands. Again continue with the simple jogging. थोड़ा fast. Slow down. Now palms on the knees and breathe in from the nose. Breathe out from the mouth. Stretch down, touch your toes, relax your hands. Come up, backward arch. अब थोड़ा सा ट्विस्टिंग करेंगे राइट एंड लेफ्ट. और विश्राम करें. ओके, सो रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. लेट द ब्रीदिंग सेटल डाउन. सांसों को सहज होने दो. Breathe in and breathe out. And now we are ready for सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार के लिए मैट के आगे आ जाइए. दोनों पैरों को जोड़ के हाथ नमस्कार मुद्रा में 10 स्टेप सूर्य नमस्कार करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. 6 हमने कंप्लीट कर लिए हैं. थोड़ा विश्राम करें. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन फ्रॉम द नोज, ब्रीद आउट फ्रॉम द माउथ. रिलैक्स. लेट द ब्रीदिंग सेटल डाउन. अब हमारे अंदर बॉडी हीट महसूस कर रहे हो. नाइस प्रैक्टिस. थोड़ी थकान है और थोड़ी गर्मी बढ़ चुकी है.
शरीर की ऊर्जा बढ़ गई है तो हम और चेक कर पाएंगे. दिस विल हेल्प यू टू मेंटेन द टेम्पो, यू कैन से. तो इसलिए जब भी आप थक जाते हो थोड़ा सा ही विश्राम करना और तुरंत उसके हैवी लेवल प्रैक्टिसेस करने की कोशिश करें. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द वेरिएशंस. सूर्य नमस्कार का पहले हम करेंगे शशांकासन, 12 स्टेप सूर्य नमस्कार. स्लो स्लो है ये. 1 2 3 4 5 6 शशांकासन, 7 8 9 10 शशांकासन, 11 राइट लेग आगे, 12 कंटिन्यू. 1 2 3 4 5 6 शशांकासन, 7 8 9 10 शशांकासन, 11 12. रिलैक्स करें. फ्रेंड्स, यू गॉट इट. ये सिंपल हमने किया है. अब हमें अच्छा लग रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है. आप करते हैं चंद्र नमस्कार. जिनको भी नी पेन है, एंकल पेन है, आपने कम किया तो भी चलेगा. 1 2 3 4 चंद्रासन, 5 6 7 8 9 10 राइट लेग आगे, 11 चंद्रासन एंड 12. कंटिन्यू विद द लेफ्ट लेग. 1 2 3 लेफ्ट लेग बैक, 4 5 चंद्रासन, 6 7 8 9 10 लेफ्ट लेग आगे, 11 चंद्रासन एंड 12. रिलैक्स. अब हमने 10 कंप्लीट कर लिए हैं. 2 मोर टू गो. और आज हम वेरिएशन करेंगे. वी विल डू अ वेरिएशन. तो हमने दो तो वेरिएशन कर ही लिए हैं. नाउ वेरी स्लोली देखते देखते करें. ओके. द नेक्स्ट सूर्य नमस्कार, वेरी नाइस प्रैक्टिस. बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है. ओके, बट बी केयरफुल. तो वी विल डू तेजस सूर्य नमस्कार. बहुत दिनों से हमने किया नहीं है ये प्रैक्टिस, तो लेट अस डू दैट. रेडी? देखते देखते करना. 1 2 ऐसे. अब 3 में ये करना. 3 4 में ऐसे आ जाओ. 4 घुटनों को सीधा पे. 5 में राइट लेग को पीछे लीजिए, दोनों हाथों को पीछे. 5 6 में हाथों को आगे रखो, दोनों घुटनों को सीधा करें, माथा सामने वाले घुटने के पास. 7 में लेफ्ट लेग जो आगे था उसको ऊपर उठाओ. 7 8 में अष्टांग में जाइए. 8 9 में भुजंगासन में जाना है, पीछे से पैरों को मोड़ना है. 10 में अब ऑपोजिट लेग को यानी राइट लेग को ऊपर उठाएंगे. 10 11 राइट लेग को आगे ले आओ, दोनों हाथों को पीछे. रिवर्स आ रहे हैं अब हम. कमिंग बैक. 12 both the knees straight, forehead to the front knee. 13 में पीछे वाला पैर आगे और ये. 14 backward arch. 15 नमस्कार. 14 step or 15 step. Relax करें. So feel that complete body is being utilized in तेजस सूर्य नमस्कार. 2-3 steps और बढ़ गए हैं इसमें, तो इसके लिए इसका नाम इसका steps 15 हो सकता है. नमस्कार को काउंट नहीं किया, आने वाला तो 14 हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस डू वन मोर राउंड. अभी हमें लेफ्ट लेग को पीछे लेना है. एक ही तेजस किया तो भी वो दोनों तरफ से हो जाता है बैलेंस. सो लेट अस नाउ कंप्लीटली फोकस एंड डू. ध्यान रखें हर एक पॉस्चर पर.
1 2 3 4, घुटनों को सीधा करें, 5 लेफ्ट लेग बैक एंड हैंड्स बैक, 5 6 both the knees straight, forehead to the front knee, then take the right leg up, 7 8 में अष्टांग, 9 go to भुजंगासन, hold the legs, 10 माउंटेन पोज में आके लेफ्ट लेग को उठाएं, 11 लेफ्ट लेग को आगे लिया, हाथ पीछे, 12 both the hands down, forehead towards the knee, both the legs knees straight, bring the back leg forward, 13 14 backward bend, 15 नमस्कार आसन। ओके, धीरे धीरे आपको इनके स्टेप्स भी याद आ जाएंगे। वेरी नाइस प्रैक्टिस, दैट इज स्टेजेस सूर्य नमस्कार। अब आप लेट जाइए पीठ के बल, लाई डाउन ऑन योर बैक, एक करवट पे आके लेट जाइए। थोड़ी सांसों को तेज, जो तेज थी धीमी होने दें। रिलैक्स योर सेल्फ कंप्लीटली, breathe in, breathe out, breathe in deep, breathe out longer. You can breathe out from the mouth also. So very nice practice for our back muscles. Simple सेतु बंधासन क्रिया, सेतु क्रिया। पैरों को मोड़ना है, थोड़ा डिस्टेंस रखना है अपने हिप्स में और हील्स में, और दोनों घुटनों में भी अंतर रखेंगे, अप एंड डाउन। बट यहाँ पे गैप है, जब आप नीचे जाएंगे तो आपका हाथ मतलब हिप्स टच नहीं है पूरा। सो दिस वी विल डू 8 टाइम्स। ओके, सो ट्राई टू रेज अप मच, 1 2 टच नहीं करना, 3 4 5 6 7 8, relax, very good. So ये सेतु क्रिया की, very nice for your hips and gluteal muscles, relax. नेक्स्ट प्रैक्टिस abdomen प्रैक्टिस करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़े, hold the legs in this manner. ओके, हाथों को इंटरलॉक करके नेक के नीचे रखें। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू टच द लेग टू द फ्लोर, नीचे जाएगा पर टच नहीं करना है। तो ये क्रंचेस है इस तरह से। ओके, एक पैर सीधा होगा, एक पैर का एल्बो ऑपोजिट नी को टच करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8. Slowly bring the legs down, relax. So we did all the practices, loosening practices और सूर्य नमस्कार, abdomen practices भी हो गई है। अब शवासन करते हैं, दोनों पैरों में अंतर, हाथ दूर और आंखें बंद। Relax yourself totally and completely. इस तरह से लेटेंगे, आपके हाथ शरीर से एक एंगल पे है 45 डिग्री, नजदीक भी नहीं या बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं। ओके, दिस पोजीशन, हथेलियाँ ऊपर की ओर, सिर को रिलैक्स रखिए। देखो बालों में रबर बैंड्स है तो लूजन अप करें। सिर का पिछला हिस्सा मैट पे होना जरूरी है। आंखों को बंद करके सिर्फ मेरी सूचनाओं को सुनना है। पूरे शरीर को ढीला रखें और अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ विश्राम करना है। सो रिलैक्स टोटली एंड कंप्लीटली। ध्यान अपने दोनों पैरों पर ले आए और मन ही मन दाहिने पैर को, बाएं पैर को देखें और दोनों पैरों को स्वयं सूचना दें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पैरों में पूरी तरह से आराम को जानना है। धीरे धीरे ध्यान हाथों पर ले आए और अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ को देखें
और दोनों हाथों को भी गाइड करें. रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. Feel the relaxation in both your hands. From the tip of the fingers to the shoulder joint, both the hands completely relaxed. फिर ध्यान पीठ पर ले आना. बाही, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक रिलैक्स्ड है और साथ ही साथ स्पाइन भी पूरी तरह से रिलैक्स्ड. रिलैक्स कंप्लीटली. Bring the awareness towards your front. Relax the front, abdomen and chest. Relax your neck. Relax your facial tissues and facial parts. Relax your head. पैरों से लेकर सिर तक पूरे शरीर में आराम को महसूस करना है. Relax totally and completely. The focus is on your breath. You can feel the breath settling down. सूर्य नमस्कार के बाद और एब्डोमेन प्रैक्टिसेस के बाद थोड़ी सांसें तेज थी, अब सहज है, सामान्य है. And enjoy this relaxation. Feel the relaxation. After this relaxation, now let us be ready for the next half session, the asanas and the pranayams. So इसके लिए आप सुखासन से आप शवासन से बाहर आएंगे. पूरी तरह से सजग होना है. पैरों की टोस को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, सिर को घुमाना है राइट लेफ्ट. दोनों पैरों को जोड़ेंगे, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे. अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए, पूरे शरीर को तानना है. स्ट्रेच योर सेल्फ नाइसली एंड रिलीज योर स्ट्रेच. पैरों को मोड़े. फोल्ड योर लेग्स, टर्न टू वन साइड जेंटली. टेक सपोर्ट ऑफ योर हैंड्स एंड सिट इन योर प्लेस. See that you are sitting in this manner, Shithila Dandasana, and gently open your eyes. So after that nice warm up and relaxation also, let's be ready for the asanas. Okay, so friends, we go for the asanas now. We are ready for a very nice backward bending practice जो हमारे शरीर के आगे वाले हिस्से को बहुत अच्छा तान या स्ट्रेच देता है. इसका नाम है उष्ट्रासन. उष्ट्र इज अ संस्कृत शब्द. उष्ट्र यानी कैमल, ऊंट. तो ऊंट के जैसे हमारी पीठ, ऊंट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, या तो ऊंट की पीठ कैसी होती है, पूरी तरह से ऐसे, isn't it? So it will be like the camel's hump. We are doing that. Okay. So now initially हमको वो नहीं आएगा इतना बैकवर्ड बेंडिंग, इसीलिए हम उसका प्रेपरेटरी पोज करते हैं. We will do the सुलभ उष्ट्रासन. Okay. सुलभ उष्ट्रासन के बाद हम अर्धोष्ट्रासन जिसे कहते हैं या सुलभ वो करेंगे. अब इसके लिए तो घुटनों पर खड़े होना है. अब जिनको भी घुटनों में दर्द है बिकॉज सम प्रॉब्लम ऑफ द नीज एंड डॉक्टर्स एडवाइज यू नॉट टू फोल्ड द नीज लॉन्ग. आप क्या करो, टॉवेल ऐसा लीजिएगा और उसको फोल्ड करें और अच्छी तरह से फोल्ड करें, या और बड़ी सी चादर भी ले सकते हैं एंड देन मैट्रेस लेके उसके ऊपर आप अपने घुटनों को रख सकते हैं. सो इफ आई एम टेलिंग यू, आप इस तरह से घुटनों के नीचे टॉवेल रख सकते हैं. ओके, तो यू कैन keep the knees on top of the towel and you get an. दोनों पैरों में अंतर रखना है. कंधों के बराबर डिस्टेंस आपके घुटनों में और सेम डिस्टेंस आपके फीट में. आपके फीट जुड़े हुए नहीं रहेंगे, फीट में भी उतना अंतर रखना है. You have to keep that distance between your feet also. So now we will be doing उष्ट्रासन. So stand on the knees. घुटनों के बल खड़े हो गए. देखो, चेक करो. यस, घुटनों में अंतर है, एड़ियों में भी अंतर है. अब दोनों पांच को ऐसे छोटी उंगलियों को जोड़ेंगे और फिर धीरे से बैकवर्ड आर्च करते हैं. ये प्रेपरेटरी पोज है सुलभ उष्ट्रासन की. गो बैक. अब किसी को वर्टिगो है, किसी को हाई बीपी है, किसी को माइग्रेन की शिकायत है, आप थोड़ा सा ही करो. इनको कोई तकलीफ नहीं है. थोड़ा ज़्यादा बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे और आंखों को खुला रखिए, सांसों को लेते रहे. 1 2 3 4 5 6. Slowly come back straight and you can sit in Vajrasana and you can release
रिलीज ऑल्सो, बट अभी सेकेंड राउंड करना है इसीलिए ऐसे ही लो। ओके, सो यू हैव टू ट्राई टू गो मैक्सिमम बैक, जितना आप नीचे जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे, पर ध्यान रहे बहुत ज़्यादा नेक पेन बैक पेन है, ज़्यादा प्रॉब्लम स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत है, आपको थोड़ा सा ही बैकवर्ड बेंडिंग करना है। सो लेट्स डू द सेकंड राउंड। पैरों में अंतर है, आप घुटनों पर खड़े हो गए, दोनों पाम्स को बैक सपोर्ट के लिए रखा है पीछे, एंड गिव एन आर्च टू द बैक। सांसों को लेते रहे, बैलेंस आता है तो ही आंखों को बंद करो, अदरवाइज कीप योर आईज ओपन। 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे। सिट एंड नाउ सिट इन द रिलैक्स पोजीशन। तो जैसे मैंने बताया था कि इस आसन में हमारे पूरे आगे वाले हिस्से को, शरीर के आगे वाले हिस्से को अच्छा सा तान मिलता है और रीढ़ की हड्डी का बहुत अच्छा बैकवर्ड बेंडिंग होता है। सो ये क्या है कि हमारी स्पाइन को, हमारी रीढ़ की हड्डी को बहुत बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। कोई समस्याएं हैं पीठ की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अर्ध उष्ट्रासन से धीरे धीरे हम फाइनल उष्ट्रासन की तरफ बढ़ेंगे। और आगे वाले हिस्से में हमारे सबसे पहले गले पर बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है। थायराइड इश्यूज जिनको भी है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल प्रैक्टिस है। डबल चिन है या यहाँ पे झाइयाँ हैं तो वो फैट कम करने के लिए गले का बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। फेशियल ग्लो भी आता है इससे। चेस्ट एक्सपेंशन होता है तो मसल्स टोन्ड अप होते हैं और आपकी अस्थमा की शिकायत है या ब्रीदिंग की कोई समस्या है वो भी क्लियर होती है। और कुछ हद तक हमारे पेट के स्नायु भी खींचे जाते हैं। सो इट हेल्प्स टू टोन अप द quadriceps muscles, the front of the legs, as well as the legs, the abdomen muscles also. So that was the practice of, yes, of course you are standing on the knees, so घुटनों पर ज़्यादा प्रेशर है तो नेचुरली घुटने की जो जॉइंट है वो भी आपके बरकरार रहते हैं। आपका जो जॉइंट के जो फ्लूइड सिक्रीशन है वो बराबर रहता है, सैनुअल फ्लूइड, और इसकी वजह से आपके घुटने हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ सिंपल उष्ट्रासन। अब जब हम पूरा उष्ट्रासन करेंगे जो हम कल परसों सीखेंगे उसमें तो आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलेंगे। अब आपने इतना भी किया तो भी आपको बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। तो दैट वाज द प्रैक्टिस ऑफ उष्ट्रासन, द कैमल पोज। ओके, वी डिड 2 राउंड्स। लेट अस नाउ स्टैंड एंड वी गो फॉर द स्टैंडिंग प्रैक्टिस। धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होके हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं एंड द प्रैक्टिस इज अर्ध कटी चक्रासन। ओके, नाम को समझ लेते हैं। अर्ध यानी हाफ, कटी यानी हमारा वेस्ट, एक कटी रीजन है, और चक्रासन यानी व्हील पोस्ट, चक्र के जैसे घूमना है। तो अर्ध कटी चक्रासन में हम एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से करते हैं, इसलिए इसका नाम अर्ध कटी चक्रासन है। आइडियली तो इसको पैरों को जोड़ के करना है, पर जिनको बैलेंस नहीं है, जिनको अगेन हाई बीपी है और वर्टिगो की शिकायत है, पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे। ओके, सो डिपेंड्स ऑन हाउ योर बैलेंस इज। अगर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज है, बैलेंस नहीं है, तो पैरों में अंतर रखें। जिनको कोई तकलीफ नहीं है, पैरों को जोड़ें, सामने किसी एक पॉइंट को देखिए। ओके, अर्ध कटी चक्रासन के लिए तैयार। अब धीरे से राइट हाथ को ऊपर कंधे के बराबर उठाए, पाम को ऊपर की ओर फेस करें, हथेली ऊपर, फिर पूरा हाथ अपने कान को टच करें, अपर आर्म को कान को टच करना, फिर यहाँ पे हाथ को खींचना है ऊपर और आप ऑपोजिट साइड में झुक जाएं। अब जब झुकेंगे तो ये हाथ को ढीला छोड़ दीजिए, यहाँ पे ऐसे नहीं जाना, बिल्कुल पीछे की तरफ। आपको अपने शरीर को आगे ढकेलना नहीं है, साइडवेज। इट्स ओनली द लैटरल बेंडिंग, ड्रॉप डाउन द हेड and keep touching the upper arm to the ear if possible. अब यहाँ पे हथेली नीचे की ओर, ऊपर वाली हथेली नीचे की ओर पॉइंट कर रही है। सांसों को लेते रहिए। 1 2 3 4 5 6, हाथ ढीला है नीचे वाला। फिर गर्दन को सीधी करें, पीठ को सीधी करें, स्लोली हाथ कंधे के बराबर ले आए, फिर हथेली नीचे एंड कम डाउन। ओके, दैट इज अ नाइस स्ट्रेच टू द कटी रीजन एंड द एंटायर साइड ऑफ द राइट। सिमिलरली लेफ्ट साइड को स्ट्रेच देने हैं, सेम प्रैक्टिस, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएंगे कंधे के बराबर, हथेली ऊपर, फिर अपर आर्म को कान को चिपका दें और हाथ को और ऊपर ताने। और अब आप ऑपोजिट साइड यानी राइट साइड झुक जाए, राइट हाथ को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को राइट साइड ड्रॉप करो, अपर आर्म कान को टच करते रहे, सांसों को लेते रहे, आंखों को खुला रखें। डोंट टिल्ट फॉरवर्ड, सी दैट यू आर बेंडिंग टू द साइड ओनली। 1 2 3 4 5 6, सीधे हो जाइए, फिर धीरे से हाथ कंधे के बराबर ले आए, हथेली नीचे और स्लोली डाउन। ओके, रिलैक्स योरसेल्फ, आंखों को बंद करें, विश्राम स्थिति। तो फ्रेंड्स, वी डिड
this practice of अर्ध कटी चक्रासन. ओके, सो अर्ध कटी चक्रासन का बेनिफिट क्या है? इसका इमीडिएट इम्पैक्ट हमारे स्पाइन पे होता है. लैटर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम जनरली आगे और पीछे झुकते हैं, तो इसमें हमने रीढ़ की हड्डी को क्या किया? साइडवर्ड बेंडिंग किया है. तो यहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है. रीढ़ की हड्डी से निकलने वाले जितने भी नर्व्स हैं उनका काम क्या है? सेंसेशन. तो ये नर्व इम्पल्सेस अच्छी तरह से फ्लो होते हैं. वहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होने लगते हैं. हमारी प्राणवायु अच्छी तरह से फ्लो होती है. और जब आप एक हाथ को उठाते हो तो इस तरफ के फेफड़े खुलते हैं. जब आप इस तरफ झुकते हो तो बाईं ओर की फेफड़ों का एक्सपेंशन होता है. सो एक्सपैंड्स योर लंग कैपेसिटी. आपकी लंग वॉल्यूम बढ़ती है और आपकी प्रतिकार शक्ति इससे बढ़ती है. ऑफ कोर्स फिजिकल लेवल पे लैटरल बेंडिंग है, प्राणिक लेवल पे प्राणवायु का संचारण अच्छी तरह से होता है इस प्रैक्टिस से, अर्ध कटी चक्रासन. एंड द थर्ड मेजर बेनिफिट इज व्हाट? कटी रीजन को इसमें स्ट्रेच मिलता है. तो यहाँ पे जो फैट एक्यूमुलेशन है उसको निकालने के लिए, ऑब्लिक मसल्स का फैट को कम करने के लिए, गलाने के लिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस है. साथ ही साथ आपके किडनीज का फंक्शन भी इम्प्रूव होता है. इसमें हमने लोअर बॉडी का इस्तेमाल नहीं करना है. यू आर नॉट गोइंग टू मूव द लेग्स ऑन ऑल. द लेग्स आर बैलेंसिंग. सो वी आर बैलेंसिंग ऑन बोथ आवर फीट. सो दैट इज हेल्पिंग यू टू लर्न टू बैलेंस ऑल्सो. तो हमने सिर्फ अपर बॉडी का टॉर्सो मूवमेंट किया है. Okay, so let us do one more round of the Ardha Kati Chakrasana. Right hand up, turn the palm up, stretch up. Pull your hand up, bend down to the left side, drop down the head. सांसों को लेते रहिए. Don't stretch, pull, tilt. Tilting नहीं होना चाहिए. सांसों को लेते रहना है. Correct yourself. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सीधे हो जाएंगे. Hand down and bring the hand completely down. Bring the left hand up to the shoulder level, turn the palm up, stretch up more and bend down to the other side. Relax your right hand, keep the upper arm touching the ear, keep the hand straight. Tilt नहीं करना है, maintain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सीधे हो जाएंगे. Slowly hand down and completely hand down. Relax. Close your eyes. Enjoy the effects of Ardha Kati Chakrasana. You can feel the changes within your body. Okay, and now we are ready for the prone practice. So धीरे से आप बैठ जाइए और पीठ के बल प्रोन पोजीशन में लेट जाएं. वेरी नाइस एंड सिंपल आसन फॉर योर बैक. तो इसके लिए आपको रिलैक्स होना है इस तरह से सुलभ मकर आसन में. So we are going to give a stretch to the lumbar spine, the lower spine. तो उष्ट्रासन जैसे जिनको नहीं होता है, लोअर स्पाइन इज स्टिफ, तो इसके लिए ये प्रेपरेशन हो जाएगा कि आप इस तरह से शलभासन करोगे तो उष्ट्रासन कल और अच्छे तरह से हो जाएगा. इसलिए उष्ट्रासन शलभासन को लिया है. तो पहले हम अर्ध शलभासन करेंगे. तो आपकी चिन थोड़ी मैट पे रखो और दोनों पैरों को जोड़ो और दोनों हाथों की फिस्ट बना के आप थाइस के नीचे रखिए. अब आपकी चिन फिक्स ठीक है. Only raise the right leg up as much possible. पर पैर को ज़्यादा मोड़ना नहीं है, सीधा रखना है घुटने में. सांसों को लेते रहना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slowly bring the leg down. यहाँ पे ध्यान दें कि सिर को नहीं उठाए. अब राइट लेग को रिलैक्स करके लेफ्ट को उठाए. स्ट्रेट अप. मेंटेन. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bring the leg down and gently relax. विश्राम करो. यहाँ पे हमारा ग्लूटियल मसल्स पे और लोअर बैक पे इसका काफी असर होता है. रिलैक्स. So Shalabhasan, the grasshopper pose, is a very nice practice to strengthen your lower spine. Now let us do the पूर्ण शलभासन. क्योंकि ये आता है पर जिनको मुश्किल लगता है, हैवी बॉडी है, आप एक एक पैर से ही करेंगे. जिनको कोई तकलीफ नहीं है दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे पर उस दौरान नहीं उठाना. ओके, सो फिक्स द चिन. अगेन प्लेसिंग द palms, making a fist below the thighs. Fix your upper body. Raise both the legs. Keep the legs straight at the knees. Do not spread the legs. Legs को नजदीक ले और ऊपर उठे. Feel the pull on your back muscles, especially the lower back. Maintain करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slowly come down.
Very good. Relax in Sulabh Makarasan. And now we are ready for the next practice. ये डायबिटीज के लिए भी बहुत बेनिफिशियल प्रैक्टिस है और पेट की चर्बी को कम करने के लिए भी हेल्पफुल है, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है शलभासन। ओके, सो नाउ वी आर रेडी फॉर द बैक सुपाइन पोजीशन। पीठ के बल लेटेंगे। सुपाइन पोजीशन आसन में हमने सिंपल ट्विस्टिंग करना है, ऑल द मूवमेंट्स विल हैपन देन। सो ट्विस्टिंग ऑफ द स्पाइन, उत्तान वक्रासन। रिलैक्स योरसेल्फ फर्स्ट। अब आपको दोनों पैरों को मोड़ देना है और यहाँ पे ध्यान दें कि दोनों पैरों में अंतर रखें, जोड़ के नहीं रखें। दोनों पैरों में अंतर है, पैरों को तो नजदीक लिया है हमने, पर घुटनों में अंतर, पीठ में अंतर। और आज हाथों को इंटरलॉक करके करेंगे। ओके, इंटरलॉक। और एल्बोज को उठाना नहीं, एल्बोज आर रेस्टिंग। नेक के नीचे नेक के पीछे रखेंगे, बालों को रिलैक्स करते हुए। सी दैट यू आर नॉट लिफ्टिंग द एल्बो अप। आपके एल्बोज ऐसे है, फिक्स्ड ऑन द बैक। नाउ बोथ द लेग्स टू द लेफ्ट साइड। सो देखो अंतर है ना, इसीलिए आपका ऊपर नीचे वाला पैर पूरा नीचे जाएगा, ऊपर वाला पैर नीचे वाले पैर के टोज के पास या एड़ी के पास। और सिर को आपको राइट साइड घुमाना है। दोनों पैर लेफ्ट साइड गए, सिर राइट साइड। सांसों को लेते रहे। 1 2 3 4 5। कम टू द सेंटर एंड नाउ लेग्स टू द राइट साइड एंड हेड टू द लेफ्ट साइड। देखो ऊपर वाला घुटना नीचे वाले पैर के टोज के पास, उसके ऊपर नहीं है। नीचे वाले पैर में और ऊपर वाले पैर में अंतर है। एंड ट्विस्ट योर हेड नाइसली। 1 2 3 4 5 6। सेंटर, रिलैक्स। सो इट इज अ रिलैक्सिंग प्रैक्टिस। इट इज ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर। कार्डियक इश्यूज है उन्होंने तो इसको करना ही है, डायबिटीज है उनके लिए रियली वेरी बेनिफिशियल। अगेन कटी चक्रासन में जो साइड फैट को हेल्प होता है रिलीज करने के लिए, वो भी बेनिफिशियल है। एंड इट इज़ वेरी नाइस फॉर ट्विस्टिंग द स्पाइन। स्पाइन रीढ़ की हड्डी का अच्छा सा ट्विस्ट होता है तो ब्लड सर्कुलेशन पीठ की तरफ बढ़ता है, टोनिंग अप ऑफ द बैक मसल्स होता है, नर्व इम्पल्सेस या नर्व सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। सो लेट अस डू वन मोर राउंड। फिर से पैरों को मोड़े, दोनों घुटनों में अंतर रखेंगे, हाथों को इंटरलॉक करके नेक के नीचे रखें। अच्छी तरह से एल्बोज को ज़मीन पर टाइट फिक्स रखें। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ले जाइए और सिर को राइट साइड। Relax the upper leg which is down nicely on the floor and relax the lower leg. Feel the twist on your back. Maintain 1 2 3 4 5 6. Center and turn to the other side. Maintain 1 2 3 4 5 6. Center and now hands release, legs relax. थोड़ी देर के लिए विश्राम स्थिति में लेटे रहे। Enjoy the effects of Uttan Vakrasan. Now join the legs and stretch yourself. Give a nice stretch. Release your stretch. पैरों को मोड़े, आप एक करवट पे आ जाइए और धीरे से अपनी जगह पर बैठे। ओके, सो नाउ यू कैन सिट एंड सो मेनी आसनास। आज हमने जो जो आसन किए हैं उनको एक बार रिकैप करते हैं। आंखों को बैठ के बंद करके सुखासन में बैठे रहे। एडजस्ट योरसेल्फ। सो फ्रेंड्स, वी लर्नड उष्ट्रासन। हमने आज सुलभ उष्ट्रासन किया है, ओके, सिटिंग में। फिर खड़े होके हमने किया अर्धकटी चक्रासन, लैटरल बेंडिंग ऑफ द स्पाइन। फिर लोअर बैक के लिए हमने किया पेट के बल लेट के अर्धशलभासन और पूर्ण शलभासन। एंड ऑन दी सुपाइन पोजिशन हमने किया है उत्तान वक्रासन, ट्विस्टिंग आसन। ओके, सो नाउ वी आर रेडी फॉर अवर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। ओके, आंखों को बंद ही रखना है, टॉवेल को सामने रखिए। एज यूजुअल 2 क्रियाओं को तो करना ही है रेगुलरली, श्वसन मार्ग शुद्धि और कपालभाति, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। और प्राणायाम भी भस्त्रिका, ये तो रेगुलर बेसिस पे हमें करना ही करना है। तो श्वसन मार्ग शुद्धि सभी को मालूम है। राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीद आउट, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को नीचे रखिए, नाक को साफ करें। Now left nostril close, right nostril breathe out. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe the nose. Both the nostrils. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, clean the nose. Yes, and sit relaxed. So that was the practice of Swashan Shuddhi. Be ready for the next क्रिया कपालभाति ट्रेडिशनल करते हैं, जिसमें हम नॉर्मल स्पीड से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा हुआ रहेगा और साथ ही साथ 120 स्ट्रोक्स होंगे. नॉट कंपल्सरी, अगर आप नहीं कर सकते हैं आप बीच में रुक जाइए. ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट स्पीड. ओके, so we are sitting in Sukhasana, back straight. Okay, fix your chest, tighten up your chest, and only flapping of the abdomen, breathing out. 120 strokes. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. आंखों को बंद ही रहने दीजिए. Feel the automatic stoppage of breath. Feel the automatic resuming of the breath. तो ये सहज सांसें रुक जाती हैं और सहज तरीके से फिर सांसें शुरू हो जाती है. उनका अनुभव करना है कपालभाति के बाद, जब इस तरह से हम ट्रेडिशनल करते हैं. आंखों को बंद रखते हुए रिलैक्स करें. बी रेडी फॉर द प्राणायाम पार्ट नाउ. भस्त्रिका के लिए तैयार. वज्रासन में या कोई भी आधार आसन में बैठे. ओके, फर्स्ट राउंड ऑफ 10 strokes. I will count for you. Breathe in and breathe out actively. Start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10. Relax. So now a little bit faster round, traditional round करते हैं और 15 strokes करते हैं. Okay, no counting, साथ साथ में करते हैं. Hands by the side. Start. Very good. आंखों को बंद ही रहने दीजिए. Again, observe the changes in your breathing and your body and your mind. Release yourself. Relax your आसन. आंखों को बंद रखते हुए बैठे कुछ देर के लिए विश्राम स्थिति में. धीरे से आंखों को खोले. ओके, अगेन सिट इन सुखासन. वी गो फॉर अ नेक्स्ट बैलेंसिंग प्राणायाम, अनुलोम विलोम. ये 4 राउंड्स करते हैं. फर्स्ट राउंड के लिए मैं आपको गाइड करती हूँ, बाकी के राउंड्स हम साथ में खुद ही करेंगे. सो आपको राइट हैंड थंब से राइट, अगर आप चाहें तो अंगुली मुद्रा या ये मुद्रा भी यूज कर सकते हैं. अदरवाइज सिंपली अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, हाथ को ढीला रखें.
लेफ्ट से सांस को ले, लेफ्ट को बंद करें रिंग फिंगर से, राइट को खोले और सांस को बाहर निकाले। लंबी सांस बाहर दाहिने से, वहीं से सांस को ले, उसको बंद करें अंगूठे से और बाएं को खोले, बाएं से प्रश्वास करें। That completes one round. Let's go for the second round. Left nostril, breathe in. Close the left with the ring. Open the right, breathe out longer. Same nostril, right nostril, breathe in. Close the right with the thumb. Open the left and breathe out longer. Completing your 2 rounds. Continue 2 more on your own. 2 rounds खुद से करें. Breathe out with the left and then only keep your hand up. आपका साइकिल कंप्लीट होगा बाएं से प्रश्वास करके, उसी के बाद हाथ नीचे रखें. Feel the calming effect, feel the balancing effect on your nadis. शरीर की समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से, और ये बैलेंसिंग है हमारे ब्रेन हेमिस्फीयर्स के लिए. अब पद्म मुद्रा में बैठे 3 बार भ्रामरी करेंगे. गहरी सांस ले, फोकस बिटवीन योर आईब्रोज, भ्रू मध्य दृष्टि, वहां पर ओम को देखना है. 3 बार ओमकार करते हैं. गहरी सांस ले, enjoy the vibrations. धीरे से दोनों हाथ को रब करना है. अपने चेहरे को मसाज कीजिए. Again, rub your palms. Try to move the palms on your neck and your back, shoulders, front, back, and your legs. Again, rub your palms. Cup your eyes. Wait for some time. Feel the darkness. Feel the relaxation. Feel the warmth of your palms. Now open your eyes in the darkness of your palms. और धीरे धीरे फिर हाथों को हटाएं. Okay friends, so we end our session over here. Have a lovely day. I hope you are really enjoying the practice.